پروگرام نجات کے التجا میں خوش آمدید. آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ شامل ہو کر بہت خوشی ہوئی. امید ہے کہ آپ بھی اپنی روح میں خوشی محسوس کر رہے ہیں, آپ خداوند میں بڑھ رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں نا امید ہو جانا بہت آسان ہے. ہم ان سے نا امید ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, ہم ان چیزوں سے نا امید ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں. لیکن خداوند کی بادشاہی ہمیں اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم خداوند کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر سکیں اور اس کی بادشاہت پر توجہ دے سکیں اور اس کی بادشاہت اور نجات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. تو میں چند منٹوں کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں, جہاں ہم خدا کے کلام کی طرف دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کس طرح وہ ہمیں نجات دیتا ہے, کس طرح وہ ہمیں آزاد کرتا ہے, لیکن وہ ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. آج ہم اعمال کی کتاب کو دیکھیں گے اور ہم ایک بہت ہی اچھی مثال کی طرف دیکھیں گے کہ خداوند کس طرح ہمارے وسیلہ سے کام کرنا چاہتا ہے, کیسے وہ چاہتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں, ہم ان کی زندگی میں فتح لائیں. خداوند ہم سے یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. ایک بار جب وہ ہمارا مالک بن جاتا ہے, جب ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں, ایک بار جب ہم اس سے تعلق قائم کر لیتے ہیں, تو پھر وہ دوسرے لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے. وہ انہیں خدا کی بادشاہت تک لانے کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے. وہ انہیں زندگی کی حقیقت کی طرف لانے کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے. اب میں ظاہری سلطنت کی بات نہیں کر رہا, وہ دن آئے گا جب یسوع مسیح واپس لوٹے گا, لیکن ابھی روحانی طور پر لوگوں کی زندگی میں خدا کی بادشاہت کا ثبوت دینے کے لیے ہم آج اعمال اس کے 16 باب کو دیکھیں گے. ہم 16 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے. لکھا ہے, جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی. غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. تو ہم پولس رسول کے متعلق پڑھ رہے ہیں. اگر ہم اعمال کی کتاب پڑھیں تو ہمیں ایک قابل غور تبدیلی نظر آئے گی. ہم پچھلے کچھ باب سے پطرس کے متعلق پڑھ رہے ہیں اور اب ہم پولس رسول کے متعلق پڑھیں گے. پولس رسول پطرس سے اچھے یا برے نہیں ہیں. یہ صرف ایک تبدیلی ہے جو پاک روح ہمیں دکھانا چاہتا ہے اور وہ ہم تک یہ پہنچانا چاہتا ہے. تو لکھا ہے, جب ہم پولس کے ساتھ دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے. ہم 16 آیت میں ان اہم الفاظ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سب سے پہلا اہم لفظ دعا ہے. خداوند سب کچھ دعا کے وسیلے سے ہی کرتا ہے. جب ہم اس کے پاس آتے ہیں, جب اس سے بات چیت کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں استعمال کرے تو اس کی شروعات دعا یا زندگی سے ہی ہوگی. یہ سب کچھ دعا یا زندگی کے وسیلے سے ہی ممکن ہے. یہ ہماری دعا یا زندگی کے وسیلہ سے بڑھے گا. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس حوالے کے متعلق معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ دعا کی جگہ پر جا رہے تھے. وہ کسی کھیل کے پروگرام میں نہیں جا رہے تھے, کسی سرکاری ریلی میں نہیں جا رہے تھے, وہ دعا کی جگہ پر جا رہے تھے. ہمیشہ یہی ہماری گواہی ہونی چاہیے کہ پاک روح اس زندگی میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس بھی دعا کی جگہیں ہیں. اگلا اہم لفظ شیطان ہے. جب ہم دعا میں مشغول ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود شیطانی دنیا کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں. ایک اندیکھی دنیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیا عہد نامہ ہمیں اس کے متعلق بہت مختصر سی تعلیم دیتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی. یہ اس کی ساخت کے متعلق ہمیں بہت کم معلومات دیتا ہے. نیا عہد نامہ ہمیں تصویر پیش کرتا ہے. ایک شیطانی دنیا ہے, ایک اندیکھی دنیا ہے جو ہمارے ارد گرد حرکت کر رہی ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دنیا کو پریشان کرتے ہیں, ہم ہر طرح کا خلل پیدا کرتے ہیں, ہم دشمن کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں. اور خداوند کا شکر ہو کیونکہ اس نے بالکل یہی کرنے کے لیے ہمیں بلایا ہے. تو پولس اور اس کے ساتھ سفر کرنے والے اس کے ساتھ ہی وہ دعا کی جگہ پر جاتے ہیں اور ایک دم ان کا سامنا اس لڑکی سے ہوتا ہے جس میں غیب دان روح تھی. اب ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا پولس پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس لڑکی کے اندر بدروح ہے. ظاہر ہے کہ لوکا ماضی کی بات کر رہا ہے, وہ تاریخی معنوں میں لکھ رہا ہے. وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کیسا منظر تھا جب وہ اس دعا کی جگہ پر گئے اور وہ اس نوجوان عورت سے ملے جو بدروح گرفتہ تھی اور وہ غیب گوئی کرتی تھی. انہیں شاید یہ بھی معلوم نہ تھا, وہ شاید معلوم کرنے آئے تھے یا شاید انہیں پہلے سے معلوم تھا. لیکن دیکھیں کہ کس طرح بائبل مقدس ہمارا تعارف اس سے کرواتی ہے. خدا کے لوگ وہاں دعا کر رہے تھے اور وہ بدروح گرفتہ تھی, اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی, یا وہ لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتی تھی کہ وہ ان کے مستقبل کے متعلق پیشن گوئی کر سکتی تھی. اور پھر آخرکار بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ غیب گوئی سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہت پیسہ کماتی تھی.
اور آئیے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ خدا کے لوگ دعا کر رہے ہیں، وہ یہاں پر ہیں، لیکن اس موجودہ دنیا میں، اس موجودہ بادشاہت میں ایک ظاہری بات ہے کہ اس دنیا میں شیطانی قوتیں موجود ہیں جو ان لوگوں کی وسیلہ سے کام کر رہی ہیں جو اس اندھیرے سے منسلک ہیں، اور اس کا نتیجہ آمدنی یا پیسہ ہے، لیکن وہ بدرو گرفتہ ہی ہے، وہ غلامی میں ہی رہ رہی ہے، اور بائبل مقدس کبھی کسی کو غلامی میں نہیں رہنے دیتی، یہاں تک کہ انہیں بھی جو خدا کے کلام اس کے روح سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ جب کبھی بھی آپ اور میں ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو حقیقی طور پر جو واقعی اپنی غلامی سے باہر آنا چاہتے ہیں، جو ان پھندوں اور الجھنوں سے باہر آنا چاہتے ہیں جنہوں نے انہیں جھوٹ اور دھوکے اور اندھیرے میں جکڑا ہوا ہے، پاک روح ہمیشہ انہیں ان چیزوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اگر واقعی ان کی خواہش ہے تو پاک روح انہیں ان چیزوں سے آزاد کرے گا۔ تو 17 آیت میں لکھا ہے کہ اعمال 16 باب 17 آیت، وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالی کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ کس طرح وہ ان کے پیچھے گئی۔ میرے خیال سے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر ہم اس کے لغوی معنی دیکھیں کہ وہ ان کا پیچھا کر رہی ہے، میرے خیال میں اس میں ایک بنیادی معنی چھپے ہیں۔ بائبل مقدس بتا رہی ہے کہ وہ روحانی طور پر بھی ان کا پیچھا کر رہی ہے، اس کے اندر کچھ ہو رہا ہے، وہ اس گروپ کا حصہ بننے کی خواہش مند ہے۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر حصہ بننا چاہتی، وہ یہ دیکھنا چاہتی کہ کس کے ساتھ چل رہی ہے، بلکہ روحانی طور پر بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بات کی خواہش مند ہے کہ وہ خود کو حوالے کر دے، کہ وہ نہ صرف پولس اور اس کے دوستوں کی سچی پیروکار بن جائے بلکہ یسوع مسیح کی بھی پیروکار بن جائے۔ یہی چیز لوگوں کے لیے نجات کا باعث بنتی ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر کوئی فتح نہیں ہے، یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی عبور نہیں کر سکتے۔ وہ لعنتیں، وہ جادوگری جو آپ کے خاندان میں نسل در نسل چل رہی ہیں، وہ لتیں اور مضبوط گڑھ جنہوں نے آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کو غلامی میں جکڑا ہوا ہے، وہ چیزیں یسوع مسیح کی قدرت کے بغیر ٹوٹیں گی۔ لیکن جب یسوع مسیح آتا ہے تو بندھن ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، جادوگری کے عمل اور لعنتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو پولس جو ہے وہ دعا کی جگہ پر ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ واپس وہاں پر گئے۔ خیر، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لونڈی ہر روز اس کا پیچھا کیا کرتی تھی، تو ہم فرض کرتے ہیں کہ پولس ہر دوسرے دن اس دعا کی جگہ پر جاتا ہے۔ اب بائبل مقدس ہمارے لیے یہ بہت مرتبہ کرتی ہے، یہ ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ چیزیں کس طرح وقت لیتی ہیں، اور یہ ان تمام چیزوں کو چند جملوں میں مختصر کر دیتی ہے تاکہ میں اور آپ اس کی وضاحت کر سکیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ سمجھ بوجھ مختلف طریقوں سے کام کرتی ہے۔ بعض اوقات سمجھ بوجھ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک دم سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی شیطانی چیز موجود ہے، دوسری طرف آپ چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ ہر دوسرے دن ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کی پیروی کر رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی ہماری پیروی کرنی چاہیے، جہاں تک کہ پولس نے کہا تھا کہ اس طرح سے میری پیروی کرو جیسے میں یسوع مسیح خداوند کی پیروی کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ وہ صحیح بات کہہ رہی ہے، وہ خدا کی خوبی کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ آدمی ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ وہ زندہ خدا کے کلام کو ہم تک پہنچا سکیں۔ تو جس پیغام کی وہ پیروی کر رہی ہے وہ صحیح ہے، تو اس کا راستہ صحیح ہے، جو کچھ بھی وہ کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پولس کے ساتھ ساتھ ہم بھی یہ بات جان سکتے ہیں کہ اس وقت شاید ہمیں کچھ بھی ٹھیک نہ لگ رہا ہو، لیکن تو بھی یہ ٹھیک لگتا ہے اور یہ سننے میں ٹھیک لگتا ہے۔ ایک لمحہ خود کو اس پوزیشن میں رکھ کر دیکھیں، شاید آپ کے خاندان میں ایسی صورتحال ہو، یا شاید آپ کے کام پر ایسی صورتحال موجود ہو اور آپ کہتے ہوں کہ یہ صورتحال غلط محسوس ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو مناسب یا درست نہیں لگتی، اور اب تک باہر سے تو بھی بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن اندر سے آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے، کوئی چیز آپ کی روح میں ہلچل مچا رہی ہے، کوئی چیز آپ کو آرام نہیں کرنے دے رہی، اور بالکل یہی سب کچھ یہاں پر پولس کے ساتھ دن بدن ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا پیچھا کرنے اور اس کی بات کرنے سے
तनाज़ा पैदा होता है। तो आइए अब 18 आयत की तरफ देखते हैं। अमाल 16 बाब 18 आयत। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीता हुआ और फिर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। दिन ब दिन उसका पीछा कर रही है। वो सही बात कर रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो पौलुस को रंजीदा कर रही है। वो जानता है कि कोई ना कोई मसला है। वो जानता है कि कोई चीज है जो खुदा की फितरत के बरक्स चल रही है। हमें ये मालूम होता है कि हम वक्तन फवक्तन समझ बूझ कर सकते हैं। आपकी सूरत हाल ने शायद आपको कुछ वक्त के लिए परेशान किया होगा। हो सकता है कि ये सूरत हाल आपकी कलीसिया में हो। शायद आप एक पास्टर हो और आप कह रहे हो कि मेरी ऐसी सूरत हाल है जो बज़ाहिर तो ठीक लगती है, ये सुनने में भी ठीक लगती है, लेकिन ये ठीक महसूस नहीं होती। कोई ऐसी चीज है जो मेरी रूह की जांच कर रही है, या शायद उसका कोई हिस्सा है। इस सूरत हाल का कोई पहलू है। आप कह सकते हैं कि ये सब ठीक नहीं लगता, इसे वक्त देना चाहिए। अगर आपके पास वक्त है तो वो दुआ को दें। पौलुस रोज बरोज दुआ की जगह पर जाया करता था। जो रूह उस नौजवान औरत के अंदर काम कर रही थी, वो उसकी पैरवी करती थी और वो तशवीश पैदा करती थी, रूहानी तशवीश पैदा करती थी, एक बेचैनी पैदा करती थी, तकलीफ पैदा करती थी। और पौलुस, हम जानते हैं कि पौलुस किस तरह से जिंदगी गुजारता था। हम जानते हैं कि वो किस तरह मिनिस्ट्री करता था, कि वो उसके दोस्त दुआ करने के लिए जाते थे। और मैं ये तसव्वुर कर सकता हूं कि दुआ में अक्सर वो इस सूरत हाल को खुदावंद के सामने रखता होगा कि खुदावंद यीशु मसीह वो हमारा पीछा कर रही है। ये एक अच्छी बात है। वो दूसरों को सही बातें बता रही है और वो चिल्लाकर सबको वो ये बता रही है। ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इसके मुतालिक कुछ गलत महसूस होता है। शायद पौलुस ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन है। अपनी जिंदगी में वो एक नजूमी थी, लेकिन शायद वो ये ना भी हो। शायद ये चीज उससे छुपाई गई हो। अक्सर औकात मिनिस्ट्री में हमसे बहुत सी चीजें छुपाई जाती हैं। चीजें मुकम्मल तौर पर हम पर जाहिर नहीं की जाती। यहां तक कि तफ्तीश के जरिए भी हम सब कुछ मालूम नहीं कर पाते। लेकिन पौलुस दुआ करता रहा और ये सूरत हाल जैसी भी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, या आपकी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, या शैतानी कुव्वतें क्या कर रही हैं। अगर आप दुआ को जारी रखते हैं तो ये आखिरकार वाज़े हो जाएगी। पाकरू कभी भी अंधेरे को बेनकाब किए बगैर नहीं छोड़ेगा। वो कभी भी बदउनवानी या किसी शैतानी कुव्वत को रोशनी में लाए बगैर नजरअंदाज नहीं करेगा। बिल्कुल यही चीज हमें यहां पर मिलती है कि वो उनके साथ चल रही है, वो सही बातें कह रही है। लेकिन पौलुस को ये मालूम हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। और एक दिन उस बदरू ने खुद को बेनकाब कर दिया है। कुछ कहा जा रहा है, कुछ हो रहा है, उसे मालूम हो गया। और उसी लम्हे उसने फिर कर उससे वो कहा जो 18 आयत में लिखा है। ये रोज बरोज होता रहा जब तक कि पौलुस रंजीदा ना हुआ और उसने मुड़कर उस लड़की के अंदर मौजूद बदरू को हुक्म दिया। वो पीछे मुड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास की सकाफत क्या कहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाईवे पर ट्रैफिक किस तरफ जा रही है। बल्कि जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं और वो लम्हा जब आपको ये मालूम हो जाता है कि कोई शैतानी चीज काम कर रही है और आप पलट जाते हैं, ये एक रूहानी लम्हा होता है। और उस लम्हे वो बोल पड़ा। अब यहां कुछ चीजों पर गौर कीजिए। निजात फौरी थी, उसकी कोई जाहिरी शक्ल नहीं थी। हमने यीशु मसीह की खिदमत में कई मौकों पर यह देखा है कि जब कभी भी वो किसी ऐसे शख्स का सामना करता था जिसमें बदरू होती थी, वो कोई ना कोई चीज जाहिर जरूर करता था। हम मरकज 5 बाब में देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह कश्ती पर से उतरा तो एक जवान आदमी जिसमें नापाक रूह थी वो उसके पास आया। लेकिन यहां पर यह औरत जकड़ी हुई थी और उस शैतानी कुव्वत के ज़ेरे कंट्रोल थी, लेकिन फौरी तौर पर उसने उसे छोड़ दिया। हम देख सकते हैं कि उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। वो जमीन पर नहीं गिरी, उसने कोई नागवार हरकत नहीं की और उसने खुद को काटने की कोशिश नहीं की। हमने पढ़ा कि अगरचे उसके अंदर का शैतान चिल्ला रहा था, लेकिन वो फौरन उसमें से निकल गया।
और गौर कीजिए कि पौलुस ने सिर्फ एक जुमला कहा कि मैं तुझे यीशु के कुदरत वाले नाम से यह हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा। इस बात से सीखें कि जब आप दूसरे लोगों के लिए दुआ करते हैं, पास्टर्स, आप इसे अपनी रहनुमाई के लिए लें। आप ये सीखें कि आपको या मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बदरूहों के साथ बातचीत करने की कोशिश करें। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये इंतज़ार करें कि ये बहुत दिनों और यहाँ तक कि महीनों तक होता रहे। ये हमारे लिए हिदायतनामा होना चाहिए। अगर कोई आज़ाद होना चाहता है, हमें उसके लिए अपने तजर्बे की बुनियाद पर दुआ नहीं करनी, अपनी तालीम की बुनियाद पर उसके लिए दुआ नहीं करनी, या जिस फिरके से हमारा ताल्लुक है हमें उसकी बुनियाद पर उनके लिए दुआ नहीं करनी। हमें यीशु मसीह के अजीम नाम से उनके लिए दुआ करनी है। वो बादशाहों की बादशाहों का नाम है, वो खुदावंदों के खुदा यीशु मसीह का नाम है। अगर आपको लोगों के लिए दुआ करने के लिए मसा किया गया है और उस लम्हा पाकरू आपको ये दिखाएगा कि ये वो वक्त है जब आप उसका नाम लें और आप उस बदरू पर इख्तियार रखें और वो उसी वक्त निकल जाएगी। आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा। मैंने किताबें पढ़ी हैं जहां निजात हासिल करने के लिए बहुत दिन लगे या बहुत महीने लगे। मैंने बहुत सी ऐसी सूरत हाल के मुतालिक पढ़ा है जहां वो शख्स जो दुआ कर रहा है उसके और उस शैतान के बीच बातचीत हुई है। मेरी राय उन तमाम चीज़ों पर मबनी है जो मैंने कलाम में देखी। वो चीज़ें आपको मुसीबत में डाल सकती हैं। वो तमाम चीज़ें दुश्मन को ये मौका देंगी कि वो आपको मजीद धोखा दे और ज़्यादा उलझन में रखे। अगर खुदा ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है, अगर खुदावन की ताकत के वसीले से आप पर कुछ जाहिर हुआ है कि यही वो लम्हा है, अब आपको यीशु मसीह के नाम से शैतान को हुक्म देना है और उसे टूटते और जाते हुए देखना है, तो आपको इसी लम्हे ऐसा करना है। बस यही सब कुछ उन तमाम बातों का निचोड़ है। और अब 19 आयत में देखते हैं, उसके मालिक जो पैसों की उम्मीद कर रहे थे वो अब नाउमीद हो गए हैं। तो उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ा और उन्हें हाकिमों के पास चौक में खींच के ले गए। हर शैतानी कुव्वत के पीछे कोई ना कोई मुनाफा कमा रहा है। हर लत के पीछे कोई ना कोई मुनाफा कमा रहा है। नशे की लत के मुतालिक ज़रा सोचिए, चाहे वो हीरोइन हो या फिर वो मेथेफेटामिन हो, चाहे ये कोई और नशावर चीज़ हो या कोई गैर कानूनी मंशियात हो। मज़हब के मुतालिक सोचें और कानून परस्ताना लतों के मुतालिक सोचें। क्या ऐसे लोग हैं जो इससे भी फ़ायदा उठाते होंगे? बिल्कुल, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जब हमने आमाल की किताब शुरू की, अगर आप उसे पढ़ें तो तीसरे बाब में पतरस और यूहन्ना हैकर की तरफ जा रहे थे और उन्होंने उस आदमी को शिफा दी जो लंगड़ा था। वो हर रोज़ उस दरवाजे पर बैठा करता था। उन्होंने उससे कहा कि हमें भी ये मुफ्त मिला और हम तुझे भी ये मुफ्त में देते हैं। निजात से कोई मुनाफा नहीं कमाता, कोई भी खुदा यीशु मसीह की बादशाहत से मुनाफा नहीं कमाता। अब वो बहुत वाज़ेह तौर पर बात कर रहा था। पौलुस मिनिस्ट्री में बहुत वाज़ेह तौर पर काम करता था। मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग मुआवजे के मुस्तहिक होते हैं। उन दोनों ने ही ऐसा कहा, लेकिन किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना गलत है। अब यीशु मसीह आज़ादी और निजात लेकर आता है। यीशु मसीह ही जिसे चाहे निजात बख्श सकता है। बेशक बाकी तमाम चीज़ें सिर्फ उलझने लेकर आती हैं, बाकी तमाम चीज़ें गुलामी लेकर आती हैं। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं तो हमें आज़ादी और निजात हासिल होती है और फिर हम मुफ्त में इसे सब लोगों को देते हैं। क्या सब इसके लिए तैयार हैं? क्या आप सबकी यही ख्वाहिश है? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जिन लोगों को खुदावंद हमारे पास भेजता है, वो लोग जिनसे हम मिलते हैं और जिन्हें हम पहचानते हैं कि उनका ईमान है कि वो आज़ाद होना चाहते हैं, कि वो उस लम्हे तक आ पहुँचे हैं जहाँ वो निजात हासिल करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों के लिए दुआ करें और उन्हें मुफ्त में निजात हासिल करता हुआ देखें। लेकिन उसकी फतह पौलुस के लिए मुसीबत ले आई। उसकी निजात उसके लिए कैद लेकर आई। और ये एक ऐसी चीज़ है जो खुदावंद ने की। उसकी फतह का मतलब पौलुस और उसके दोस्तों के लिए तकलीफ था
और खुदा की बादशाहत उसी तरह से काम करती है। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो दुश्मन खुश नहीं होता। जब हम उनके लिए फतह का बाइस बनते हैं तो वो हमारे खिलाफ जुल्म सितम लेकर आता है। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में वो सब कुछ होता रहना चाहिए ये जो हमने 16 आयत में पढ़ा, यानी दुआ की जगह। अगर आप दुआ की जगह पर नहीं जाते, जब लोग निजात हासिल करते हैं तो जिस तकलीफ से आप गुजरते हैं वो आपको कुचल देगी। अगर आप बाकायदगी से दुआ की जगह पर नहीं जाते तो आपके इर्द गिर्द जो लोग निजात का तजुर्बा हासिल करते हैं वो आपकी हौसला शिकनी और शिकस्त का बायस बन जाएंगे। दुआ की ये जगह, हर रोज यसु मसीह से मिलना, उसके साथ वक्त गुजारना, हर रोज उसके पास जाना जरूरी है। बाइबल मुकद्दस का किंग जेम्स वर्जन बताता है कि वो बहुत दिनों तक ऐसा करती रही और इसीलिए जाहिर है कि वो बहुत दिन तक दुआ की जगह पर जा रहे थे। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होना चाहिए, यही हमारी आदत होनी चाहिए ताकि खुदावंद हमेशा हमारे इर्द गिर्द के लोगों को छूने के लिए इस्तेमाल कर सके। मैं आज के प्रोग्राम के इख्तिताम दुआ से करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा जो ये महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी, आपके घर में लानतें काम कर रही हैं। हम आपकी निजात के लिए दुआ करना चाहते हैं। आप जहां भी हैं और जैसे ही आप मेरे साथ मुत्तफिक होंगे आपके घर में निजात आएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में आप कहां पर हैं, आप वस्ती अमेरिका में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। जब आप दुआ में मेरे साथ मुत्तफिक होते हैं तो आप निजात हासिल करेंगे। फिर हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो कभी भी यसु मसीह से नहीं मिले। शायद आप किसी चर्च में जाते हों, शायद आप किसी पास्टर या किसी एवेंजलिस्ट की पैरवी करते हों। अब वक्त आ गया है कि आप यसु मसीह की पैरवी करें। मैं आपको वो मौका दूंगा। तो ठीक है, आइए मिलकर दुआ करें। बाप, हम यसु मसीह के अजीम नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम उस कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो यीशु के नाम में पाई जाती है, जो बंधनों को तोड़ती है और लतों को खत्म करती है, जो लानतों और जादुई अमलों को खत्म करती है, जो लतों की बदरूहों को निकालती है और जो अजाब और मौत की बदरूहों और डर की रूह को निकालती है, जो बदसलूकी बदरूहों को निकालती है। और आज हम हर घर के लिए दुआ करते हैं। हम हर एक शख्स के लिए दुआ करते हैं। यसु मसीह, तू उन तमाम लोगों से मिल जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अब मैं मिन्नत करता हूं कि तेरे पाक रूह के वसीला से तू उनके घरों में जा, तू अभी इसी वक्त उनके कारोबार में जा। और अगर वो आदमी, वो औरत, अगर वो नौजवान शख्स आजाद होना चाहता है तो मैं दुआ करता हूं कि तू उन्हें आजाद कर। यसु मसीह, तेरे कुदरत वाले नाम से हम लत की इन जंजीरों को तोड़ते हैं। तेरे नाम से हम उन लानतों को दूर करते हैं। हम खानदानी लानतों को दूर करते हैं। हम जादू टूने की उन लानतों को दूर करते हैं जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। हम शैतानी कुव्वतों पर और अंधेरे पर इख्तियार रखते हैं। हम खुदकुशी की रूह और मौत की रूह को ये हुक्म देते हैं कि यसु मसीह के नाम से बाहर निकल जाएं। हम ज़हनी दबाव की रूह को ये हुक्म देते हैं कि अभी इसी वक्त यीशु के नाम से निकल जाए। हम बदसलूकी की हर लानत को तोड़ते हैं। मैं बच्चों के साथ बदसलूकी करने वाली शैतानी रूह को ये हुक्म देता हूं। मैं जवान लोगों के साथ करने वाली शैतानी रूह को ये हुक्म देता हूं कि यीशु मसीह के नाम से ये निकल जाए। बदसलूकी करने वाली हर शैतानी रूह अभी इसी वक्त निकल जाए और बदसलूकी की हर रूह की जगह एक मोहब्बत करने वाली रूह आए। मैं अंधेरे की रूह को, माफ ना करने वाली रूह, गुस्सा और कहर, हर कातलाना जज्बे की रूह को यह हुक्म देता हूं कि वो यीशु मसीह के नाम से खारिज हों। हम ज़हनी दबाव की बदरूहों पर इख्तियार रखते हैं। हम खौफजदा करने वाली बदरूहों पर इख्तियार रखते हैं। हम हर किस्म की बदरूह को यह हुक्म देते हैं कि वो यीशु मसीह के अजीम नाम से हमेशा के लिए चली जाएं। और मैं खुदा के लोगों के लिए निजात मांगता हूं। मैं अफसुर्दा दिलों के लिए निजात मांगता हूं। मेरे दोस्त, मैं दुआ करता हूं कि अभी इसी वक्त आपको निजात का तजर्बा हासिल हो और अभी इसी वक्त आप अपनी जिंदगी में फतह को महसूस करें। आप अपनी शादियों और अपने कारोबारों में फतह को महसूस करें। अभी इसी वक्त आप कर्ज की लानत से आजाद हों। और मैं आप सब के लिए दुआ करता हूं, खुदावंद आपके कारोबार में बरकत डाले। मैं आपके कारोबार पर यीशु मसीह की बरकत मांग लेता हूं। ये फले फूले, आप आज और हर रोज अपने कारोबार में तरक्की हासिल करते जाएं। यीशु मसीह के अजीम नाम से मांगता हूं, आमीन।
अब अगर आपने उसे अपनी ज़िंदगी में अपने खुदावंद के तौर पर कबूल किया है, अगर आपने कभी ज़ाती तौर पर हार नहीं मानी, तो यीशु मसीह से कहें कि मैं मिन्नत करता हूँ कि तू मेरा खुदावंद बन, मुझे माफ़ कर और मैं तेरा गुलाम बनना चाहता हूँ। अगर आपने यीशु मसीह से कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर अब आप ऐसा कहने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। बाइबल मुकद्दस में कोई ख़ास दुआ नहीं दी गई, लेकिन हम जो पैरोकार हैं, हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहेंगे कि आप उसी की पैरवी करें जो बाइबल मुकद्दस कहती है। जैसे हम यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नया अहदनामा हमें बताता है। सबसे पहले हमें लाजमी इस बात का इकरार करना चाहिए कि वो खुदावंद है और हम गुनाहगार हैं, ये उसके हुजूर एतराफ़ है। दूसरी चीज़ जो हमें लाजमी करनी चाहिए, वो उसके हुजूर इस बात का एतराफ़ करना है कि तू खुदावंद है और मैं तुझे अपने खुदावंद के तौर पर कबूल करना चाहता हूँ। और फिर आखिरकार हमें ईमान लाने की ज़रूरत है। ईमान हमारे एतराफ़ करने और तौबा करने के बाद आता है। जब हम गुनाह से तौबा करते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। ये खुदावंद की बरक़ात का ज़िंदा हिस्सा है कि खुदावंद खुद हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर ईमान की आग को भड़काता है कि यीशु मसीह, मैं अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी तेरी पैरवी करना चाहता हूँ जब तक कि तू वापस ना आए। क्या आप तैयार हैं? मैं इस तरह की दुआ या अहद में आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे माफ़ कर। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि तू खुदावंद है, तू खुदा का बेटा है जो मुर्दों में से जी उठा है, और मैं तुझे अपनी कुर्बानी के तौर पर कबूल करता हूँ। और मेरे निजात दहिंदा यीशु मसीह, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर। मैं तौबा करता हूँ, मैं अपने माजी से मुंह मोड़ता हूँ और मैं तेरे पास आता हूँ। मुझे हर किस्म की शैतानी रूह से आज़ाद कर, मुझे हर तरह के खौफ से आज़ाद कर और मुझे हर तरह की लतों से आज़ाद कर। यीशु मसीह, तेरे अजीम नाम से मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि मुझे माफ़ कर। मैं तेरा गुलाम बनना चाहता हूँ, मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ और मैं अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी तेरी पैरवी करूँगा। और मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ कि जब मेरी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो तू मुझे अपनी आसमानी बादशाहत में लेकर आएगा। और आज इस दिन मैं खुदा के पाक रूह के वसीला से फिर से पैदा हुआ हूँ, और मुझे अपने अल्फाज दे, मुझे अपने कलाम की तालीम दे, और मैं अभी बल्कि अब तक तेरी इबादत करूँगा। यीशु मसीह के अजीम नाम से मैं दुआ मांगता हूँ, आमीन, आमीन। अगर आपने पहली मर्तबा ये दुआ की है तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर आप किसी चर्च में शामिल नहीं हुए, आप किसी फ़िरके में शामिल नहीं हुए, बल्कि आप खुदा के ख़ानदान में शामिल हुए हैं, खुदा के रूहानी ख़ानदान का हिस्सा बने हैं, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि अगर हो सके तो आप किसी को बताएं, किसी ईमानदार शख्स को ढूंढें और उसके साथ खुदा के कलाम में नए अहदनामे को पढ़ें। ख़ास तौर पर अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है, आप हमसे प्रोग्राम निजात की इल्तिजा पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये मौका है तो दोस्तों, इस बात को जानें कि आप खुदा यीशु मसीह की खिदमत करते हैं और वो आपको बरकत देगा और आपको अपने में कायम रखेगा। आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और दुआ की दरख्वास्त भी कर सकते हैं। खुदा के लोग आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद में मेरी तरफ से आपको बहुत सा प्यार। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे साथ शामिल हुए। खुदावंद आपको बरकत दे।